Hey, hi, hello, what's up everyone? It's me Shailesh Phadkar and welcome back to my channel Fit Money Eat. Let's start this video. First of all, I want to say thank you and sorry to each and everyone. Thank you for stay connecting with my channel and sorry for I have not posted any video from long time, and I just want to post this video just for all of you guys because I'm busy in my exam, I'm busy in my life, and somehow I managed to enjoy both the things. I have cleared my written exam. Thank you for all your love and support. And I have unfortunately not cleared the oral exam, but I will clear that exam very soon. I promise you all of that. And so before going to start this video, I just want to tell you one thing, that in life you should enjoy each and every moment of your life. And so that's how when I got sign off from my last whistle, so I was just enjoying that moment of my life because it is important. While working you should enjoy, and after going home also you should spend your time with your family, with your loved ones, everyone which are trying to connect it with you every time. So please be with them for a little bit time, at least those time you can afford for them. It is a mandatory to give them time also, because तुम जब शिप पे होते हो तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं से मैनेज करके टाइम देते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है, तुम्हें भी उनके लिए टाइम देना ज़रूरी है. तो यही सब चल रहा था जब मैं साइन ऑफ किया मेरे लास्ट वेसल से. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो होम, एंड उसके बाद तो मैंने सब कुछ छोड़ के बस इन्जॉय करना सीखा है. और भाई मैंने बहुत इन्जॉय किया है इन 3 महीनों में, बहुत कुछ किया है, बहुत बड़ी चीज़ें हुई है लाइफ में, एग्ज़ाम दी है और भी बहुत सारी चीज़ें. चलो ये तो मेरे लाइफ का जर्नी है, मैं बाद में कभी आप बोलोगे, मुझे फोर्स करोगे तो मैं बता दूंगा. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ COC एग्ज़ाम. So I have got comment from one of my subscriber that he want to know about how tough is the COC exam and what are the criteria for COC exam, what exactly the COC exam is and everything. So I just want to tell you each and everything about the COC exam which I know. As far as my knowledge, I will share you each and every detail. So first of all, what is COC? ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी. सो COC एग्ज़ाम इसके लिए होती है, जो बंदा COC एक बार अचीव कर लेता है, मतलब COC जिसके पास होती है, वो एक इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल ऑफिसर रहता है ऑन बोर्ड शिप, इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर, वॉट एवर, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर ऑन बोर्ड शिप. वो एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन होता है, एक सर्टिफाइड पर्सन होता है जो कि उसके ऊपर पूरा का पूरा इंडिपेंडेंटली वी कैन ट्रस्ट, ही कैन डू एंड ही कैन मैनेज ईच एंड एवरी thing related to electrical job. Okay, so this is mandatory for electrical officer, and without that you cannot be sail on board as a electrical officer, electrotechnical officer. You can sail as a senior electrical, assistant electrical, but electrotechnical officer you will get after that achieving that COC. Okay, so what are the criteria for the COC exam? COC exam who can give COC एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है? तो COC एग्ज़ाम देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सेल एटलीस्ट फॉर 8 months ऑन बोर्ड शिप. ओके, प्री सी ट्रेनिंग के बावजूद जो 8 months आपको सेलिंग करनी है ऑन बोर्ड शिप, उसके बाद आपको यू कैन गो फॉर दिस एग्ज़ाम एंड यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम. लाइक इसमें 2 होते हैं, एक रिटर्न होती है, एक ओरल होती है, राइट. रिटर्न और ओरल का डिफ्रेंशिएट मैं तुमको आगे जाके बताऊँगा इसी वीडियो में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्री सी ट्रेनिंग की है 4 months की, उसके बाद 8 months की सेलिंग की है. ठीक है, 8 months की सेलिंग के बाद विद गुड रिव्यू एंड विद गुड रिपोर्ट्स यू नीड इन दैट सेलिंग. ओके, विद गुड रिपोर्ट्स ऑन योर टार बुक, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम. And in this exam you should give first assessment. You should for this exam you should first done with the assessment, and in assessment what are the things you required, like the basic STCW certificates, advanced certificates, advanced STCW certificate, and rest all are the important documents like passport, CDC, yellow fever, and the other things which are the important documents for the assessment. Once you have done with the assessment and the course which are mandatory for this COC exams, you can proceed, you can apply for the exams which are written or oral. So now here we can decide which one exam you should need to give first, and otherwise you can give both the exam at the same time.
So what exactly people are doing nowadays, they are giving first one exam like written पहले दे देते हैं, फिर बाद में oral दे देते हैं, या फिर दोनों एक साथ दे देते हैं। जैसे कि मैं हमेशा क्या करता था, जब भी मैं सेलिंग से आता था साइन ऑफ करने के बाद, सो नेक्स्ट मंथ आई डायरेक्टली बुक फॉर द रिटर्न ऑल्सो ओरल ऑल्सो। सो रिटर्न ऑल्सो ओरल ऑल्सो, तो ये क्वाइट कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आपका फोकस आपको किस पर रखना है वही नहीं पता चलता है, क्योंकि रिटर्न के अलग ही पैटर्न है, ओरल का अलग ही पैटर्न है, बट बोथ दी सिनारियों में आपको पढ़ाई तो सेम ही करनी है। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत दोनों के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, दोनों भी क्लियर कर सकते हो। बहुत बहुत लोगों ने क्लियर भी किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में भी। तो मैं मेरा जर्नी बताता हूँ, जैसे कि मैंने अब तक जितने भी एग्ज़ाम दिए उसके बारे में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम तो मैंने जब दी थी तब मैं फर्स्ट सेलिंग से आया था। मैंने 9 मंथ्स 10 डेज़ की सेलिंग कंप्लीट करके जब मैं आया, तब मैंने बेसिक STCW कोर्सेज़ किए, ठीक है। उसके बाद जो असेसमेंट प्रोसेस थी वो असेसमेंट प्रोसेस कंप्लीट की DG शिपिंग साइट पे जाके। उसके बाद एक बार वो असेसमेंट हो गई आपकी, तो आप अप्लाई कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, रिटर्न एंड ओरल। 4500 रुपीज़ फीस है फॉर रिटर्न और फॉर ओरल बोथ, ओके। सो मैंने दोनों बुक किए थे, और उस टाइम पे मैं पढ़ाई कर रहा था, थोड़ा आया था, थोड़ा स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो मेरे एन्जॉयमेंट में चले गए थे। फिर उसके बाद जो 3 मंथ्स थे मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं सोचा पढ़ाई करके अच्छे से दूंगा। उस टाइम पे क्या हो गया, कोरोना आ गया। कोरोना आ गया, इस चक्कर में मैं दे नहीं पाया। रिटर्न मैंने फिर भी दे दी थी, रिटर्न में मैं फेल हो गया था उस टाइम पे। और ओरल मैं दे रहा था, ओरल एक्चुअली मेरा नहीं होने वाला था मुझे लगा, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना आ चुका था, तो ओरल्स भी पोस्टपोन हो रहे थे मतलब। तो उस टाइम पे मैंने ज्वाइनिंग करना प्रेफर किया, और फिर मैंने जब ज्वाइनिंग किया, तब मैं ज्वाइनिंग करते हुए जब साइन ऑन कर रहा था, उस टाइम पे मैं होटल स्टे में था, और उसके एक दिन जस्ट पहले मुझे पता चला कि नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम है। मतलब वो लोग स्टार्ट कर चुके थे ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना ओरल्स। तो मैंने एक रात में जितना पढ़ के हो सकता था उतना दिया था, पास नहीं हो पाया, ठीक है। क्योंकि देखो, थोड़ा पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपन पढ़ते नहीं है तो कैसे होंगे पास। तो वो हो गया। फिर उसके बाद आने के बाद फिर मैंने वो सेलिंग कंप्लीट किया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने फिर से एग्ज़ाम बुक किया, ठीक है। एग्ज़ाम बुक किया, एग्ज़ाम बुक करने के बाद फिर मुझे कंपनी से कॉल आया कि अर्जेंट बेसिस पे वी नीड एन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ऑन सेम वेसल विथ, बिकॉज कि शिप अपना टडक में जा रहा है। तो फिर मैंने फिर से एग्ज़ाम छोड़ के फिर मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, क्योंकि इवेंचुअली वी नीड मनी। सो मनी के चक्कर में मैंने फिर से ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने फिर से 7 मंथ्स ऑन बोर्ड सेलिंग किया। उसके बाद मैं फिर से आया, जो कि मैं अभी आया, ठीक है। अभी आया था इस बार, तो इस बार मैंने रिटर्न अभी क्लियर कर दिया, ठीक है। रिटर्न क्लियर कर दिया, तो मैं आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में ओनली ऑन रिटर्न पे बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ओरल के लिए, ठीक है। तो रिटर्न में क्या क्या होता है उसके बारे में बताने के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि रिटर्न बहुत ही ईजीली यू कैन पास, ठीक है। उसका एक पैटर्न है, बस वो आपको क्रैक करना है। वो पैटर्न आपने एक बार क्रैक कर लिया तो आप रिटर्न पास हो ही जाओगे, इतना गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अभी COC एग्ज़ाम का आपको COC का एक्सप्लेनेशन पता चल गया है। सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी बहुत मैंडेटरी है, अगर वो होगा तो एक रिस्पेक्ट, एक ओहदा, एक सब कुछ मिलता है आपको, ऑनबोर्डशिप और सैलरी ज़्यादा मिल जाती है। तो बहुत ज़रूरी होता है COC होना, ठीक है। फिर बाद में COC एग्ज़ाम के लिए मैंडेटरी चीज़ है आपकी 8 मंथ्स की सेलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आती है असेसमेंट। असेसमेंट के बाद आता है आपका अप्लाई करना है, एग्जामिनेशन। DG शिपिंग साइट पे जाके आप E-गवर्नेंस में जाके इंडोस नंबर पासवर्ड डाल के फिर एग्जामिनेशन वाला आता है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है उससे यूज़ करके पे कर सकते हो। सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन हो गया, फिर उसके बाद आता है डेट्स। तो नॉर्मली रिटर्न एग्ज़ाम होती है 15 से 10 से लेके 15 तक, मतलब 15-16, मतलब एवरी मंथ मतलब एक महीना छोड़ के आप दे सकते हो। वंस यू गॉट फेल्ड इन वन एग्ज़ाम, सो यू कैन अप्लाई फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम आफ्टर 1 मंथ। सो रिटर्न एग्ज़ाम आपकी जो फर्स्ट रिटर्न एग्ज़ाम जो होती है वो मंथ के 2nd वीक या फिर 3rd वीक के बीच में हो सकती है, ये इतना कंफर्म होता है, ठीक है। जब भी आप बुक करते हो तो ये स्लॉट में ही आपको मिलेगा, इतना याद रखना। सो क्या क्या करना पड़ता है रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। अभी रिटर्न एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी पूरी तरह से, लेकिन मैंने जैसे पढ़ाई किया था वैसे बता रहा हूँ। बाकी इट्स ऑन यू हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम, ओके। आई एम जस्ट शेयरिंग माई थिंग्स विच आई हैव डन, ओके। तो मैंने क्या किया, 10 लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लिए अपने पास डाउनलोड, उसका प्रिंट आउट ले लिया, ठीक है। प्रिंट आउट लेने के बाद
देखो क्वेश्चन पेपर एक सेट पैटर्न होता है, उसी तरह आता है, ठीक है। तो उसी तरह आता है, तो उसमें सेक्शन टोटल 3 सेक्शन होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है 3 आवर्स के लिए। तो 3 सेक्शन होते हैं, तो तीनों सेक्शन में आपको 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन विल बी 16 मार्क्स, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो सेक्शन 2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स के लिए होता है, और न्यूमेरिकल्स के मार्क्स, आपने एक बार न्यूमेरिकल्स पूरे तरह से अच्छे से सॉल्व किया तो आपको कंप्लीट 16 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको 16 मार्क्स एक क्वेश्चन के, दूसरे क्वेश्चन के 32 मिल गए, मतलब आपके 32 फिक्स हो गए, ठीक है। बाकी का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 भी बहुत इजी होता है। सेक्शन 2 में आप फोकस करते हो मार्पोल, फिर सेफ्टी वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और उसके बाद सपोज इंजन रूम में फायर हो गया, या फिर गार्बेज हाउ यू विल मेंटेन, फिर उसके बाद क्या अपना फिर उसके बाद फिर उसके बाद बायोकेमिकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सब कुछ, मतलब उसी के ऊपर भी क्वेश्चन होते हैं। दैट्स हाउ रिलेटेड क्वेश्चंस विच कम्स अंडर सेक्शन 3। उसमें भी आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसमें नॉर्मली जीनर डायोड, फिर उसके बाद 3 मेथड्स ऑफ ओवर करंट, ये सब ऐसे छोटे छोटे, मतलब 16 मार्क्स में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे नहीं आते, सॉरी, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। वो आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, लिखने हैं, और उसको अच्छे से ड्रॉ करना है, अच्छे से नीटली प्रेजेंट करना है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। वहाँ पे जब भी आपको पेपर मिलता है, पेपर मिलने से पहले उस पर मेंशन किया होता है 4 पॉइंट्स। वो 4 पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेना। उसमें लिखा गया होता है कि आउट ऑफ 3 यू कैन अटेम्प्ट फॉर 2 क्वेश्चन, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट फॉर 6 क्वेश्चन मिनिमम फॉर ईच सेक्शन। मतलब 2-2 करके ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन, मतलब हर एक सेक्शन में टोटल 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन में टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हर एक सेक्शन से टोटल 3 सेक्शन से आपको हर एक सेक्शन के 2-2 क्वेश्चन आंसर करने हैं, मतलब टोटल आपको 6 क्वेश्चन आंसर करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और उसमें जब भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो अच्छे से करना, हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा। मैंने फेस किया हुआ है, जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया था तब मुझे पता चल गया था, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम हुआ था, और मेरा मैक्सिमम प्रॉब्लम था न्यूमेरिकल को लेके, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल इतना अच्छे से नहीं किया था, मेरे को पता है, और उधर ही मेन पूरा गेम ख़राब हो जाता है। अगर आपने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट अच्छे से कर लिया तो आपका एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि आपके वो 32 सिक्योर हो गए, और ऊपर से जब आपके जो 2 सेक्शन है उसमें आपको कम से कम 2-2 क्वेश्चन मतलब लेने ही है। उसमें से अगर एक भी सही से आपने आंसर कर दिए तो आपका मोस्ट ऑफ द चांसेस होता है पासेस का, ठीक है। ये हो गया रिटर्न का। रिटर्न में अभी जब भी आप रिटर्न एग्ज़ाम दे रहे हो तो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए आप एमएमडी सिलेक्ट करते हो, कौन से एमएमडी से आप देना चाहते हो, मुंबई एमएमडी से, चेन्नई, गोवा, जब जहाँ से भी आपको देनी है, तो वो एक सिलेक्शन पैटर्न होता है, और वहाँ पे आपको जाके आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है। तो जाते वक्त कभी भी पासपोर्ट, सीडीएसी और हॉल टिकट लेके जाना मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक मेरी पर्सनल एडवाइस है, ये चीज़ें मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है। आपको जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए। और रिटर्न लिखते वक्त हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखना और अच्छे से एग्ज़ाम सॉल्व करना, और डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। आपको रिटर्न के क्वेश्चन और पेपर चाहिए रहेंगे तो मुझे इंस्टा पे आईडी पे मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूँगा, या फिर आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम देने वाले बंदे को आप पूछ लोगे तो वो भी आपको शेयर कर देगा, क्योंकि वही है और कुछ नहीं, ये सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। देन यू कैन क्लियर योर COC रिटर्न COC एग्ज़ाम वेरी ईजीली, ठीक है। रिटर्न एग्ज़ाम होगी। So this video is all about of written exam only. So I have cleared my written exam now. First which I am not फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया था, सेकेंड अटेम्प्ट में दे नहीं पाया था, थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, ठीक है। सो डन विद दिस वीडियो, एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। एंड आपको असेसमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसका एक पेज है, जो मुझे अगर मिल जाता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नीचे PDF डाल दूँगा, या फिर ऊपर कहीं पे एक PDF का फोटोज डाल दूँगा। बट प्लीज़ गाइज सपोर्ट this channel. Now I need your support and I will definitely make new videos each and every time. And मैंने लास्ट टाइम पे भी शिप पे वीडियोस बनाए थे, बट जो भी थे वीडियो मैंने हार्ड डिस्क में सेव किए थे और वो हार्ड डिस्क मिस हो गया अनफॉर्चुनेटली। मैंने जनरेटर के ऊपर भी बनाए थे वीडियो और सब कुछ बनाया था,
बट वो मैं वीडियो अच्छी तरह से एडिट करके नहीं बना पाया. बट इन दिस वेसल आई विल ट्राई टू मेक इट. एंड ये जो वेसल है वो अभी राइट नाउ आई एम इन इटली. सो ये वेसल है पूरा यूरोप पोर्ट घूमता है. तो होप सो मैं ट्राई करूँगा मेरा बेस्ट देने का, आपको वीडियो बना के अपलोड करने का. प्लीज़ गाइज, please support, and if you like this video, hit the like button, subscribe my channel, and stay tuned. Love you all. Thank you.